Rajesh, are we good to start? Yes, we can start. Thank you. Okay, fine. Navinji, can I request you to switch on your camera? Yes. Okay. Once again, welcome and very good morning to all of you. Happy to see a good numbers today. Let me give you a brief idea about the Wellness Leaders Movement and then I'll introduce to Navinji. So we are me, Rajesh ji and Namrata ji is from the Wellness Leaders Movement community. Our objective is to bring the awareness about the various health and well-being modality and various aspects which contribute to our physical and mental health. To move ahead with our objective, we are conducting a regular wellness session on every Sunday at 11 o'clock. So every Sunday you will find a different topic which is contributing to your physical and mental health. We also invite a various industries leader from the various modalities, those who have worked in yoga, Reiki, pranic healing, naturopathy, Ayurvedic. We invite all the leaders to this group to facilitate and share their learnings with you. So this is a good platform to be join on every Sunday, so which contribute to your spiritual growth. Let me talk something about the Navinji. We are privileged to have Dr. Navinji over here. He is going to facilitate the ancient science of mudra. That's a topic of today's conversation. Dr. Navinji is associate professor in the one of the leading university in Haridwar. He belongs to Haridwar, and he is a founder member of Sri Ram Yoga Society at Rishikesh as well. He's teaching yoga to the PhD students, those who are pursuing the yoga in PhD in yoga. He's teaching to that student, so we can understand how profound knowledge he is carrying with us. It's indeed privilege for all of us to have him here. Without taking much time, let me hand over to Navinji. Navinji, over to you. Thank you very much, Mehulji. First of all, my pranam to everyone, and thank you very much for inviting me in the Wellness Leader community to share my knowledge, whatever I have, with the grace of my Guru. And I would like to thank Mehulji also, with whom we have discussed about this wellness community, and we discussed about the topic to share. So once again, thanks to Mehulji and pranam to everyone. Right. Today's session I'm going to take in Hindi. I think it will be okay. Let's take a consent of people. Yes. I think one of the participants said that she only knows English. Subhaji, will it be okay if we can conduct in Hindi? Anyone of you who don't know Hindi? I don't understand Hindi. So I don't know what to say. Because today's session is based on the practical, okay? But I will try to speak in English as well. But as per my experience, like if I speak in Hindi, maybe you can better understand. Navinji, you can go with your flow. I will help Subhaji later whenever she has any query. Yes. Okay. Please go with your flow. Yes. So first of all, straight your spine, close your eyes. Concentrate on your breathing. Concentrate on your breathing. Inhale and exhale. One time of Om chanting in the form of A, U, and Ma. You can
join your feelings and emotions with that. Inhale, deep inhale. One time of Gayatri Mantra, you can join your hands and your emotions. Om Bhuvah Swaha Tastaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Guru Vandana. Om Gurur Brahma Gurur Vishnu Gururev Maheswaraha Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Sri Guruve Namaha. Om Akhand Mandalakaram Vyaptam Yena Characharam Tatpadam Darshitam Yena Tasmai Sri Guruve Namaha. Tasmai Sri Guruve Namaha. Rub your both palm and give this energy on your face and to the whole body. Try to feel that energy. Namaste. So we are here to speak about the mudra, ancient science of the mudra. And we started from the Namaste. This is the one form of the mudra. Okay. This is also the one form of mudra. And usually in India, it's being practiced from the very ancient time, different types of the mudra in our day-to-day life. But when we are going to modernize our culture, with the time frame, we started forgetting these things. We started like thinking about, oh, there is no meaning, there is no science behind it, and that's why we started left all these ancient knowledge. Now with the time frame, like when our honorable Prime Minister announced about the International Yoga Day, now many people are joining in this ancient culture, Vedic culture, and mudra is a one form of the yogic branches. Okay, so that's why we need to discuss. Let me share my presentation. Theoretical session is very less, and we will do more and more practical, but we need to understand the philosophy, why we are doing this and what is the purpose of this. My screen is visible to everyone? Yes, it is. Okay. And if we talk about the mudra, so mudra have different types of different categories. We have Hast mudra, Sirs mudra, Adhar mudra, Kaya mudra, Yogic mudra, and Bandh. So we basically categorized in the five types of the mudra. So before knowing about these types, we need to understand what the word, why the mudra. Okay, as in the scripture says that Nasti mudrasam kinchit siddhidam chiti mandale. Like मुद्रा के समान सिद्धि प्रदान करने वाला इस धरती पर कोई और नहीं. Okay, there is no knowledge who can provide you the power and secrets about the energy, okay, on the earth. So that's why in the Hatha Yoga it says that we have to kept it very secret, like you preserve your like a gold and your silver, so like a ratna. So it's like a mudra is a ratna. That's why it's a very secret knowledge. It's very ancient and very secret knowledge. Okay, so mudra में अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो mudra is like a mud, came from the Sanskrit word mud, and mud, what is mud? Mud is the happiness, joyfulness, blissfulness. Okay,
So the mudra came from the mud word. Okay. And mudra is also your facial expression, your body gestures, postures. This is also comes under the mudra. Okay. So one form is joyfulness, happiness, blissfulness. It is also the mudra. And the another form is your gestures, postures, and your all these body symbols, you can say. And that's why I'm telling to you, mudra is a non-verbal communication also. Non-verbal communication. So non-verbal communication means what? Non-verbal communication means this is the medium. This is the medium by which you can communicate with the like something is not visible. We can say subtle. Okay. So from the physical to the subtle, if you want to make a connection, if you want to make a relation, if you want to communicate with subtle world, so there is a medium that is known as mudra. Okay. Either from the hand, either from your body postures, either from your facial expressions. We have different types of the mudra. Few are very popular. You know that. Everybody knows that. All the students knows that, because when we chant Om, we pray, when we go to the temple, maybe when we sit in the meditation, every time we do this one, right? So what is this? This is the mudra. Very popular because it's famous for the concentration. Okay. Now everybody knows that this mudra is Jnana Mudra, and this Jnana Mudra is it provides you the concentration power. Concentration power, when we focused, then you can learn easily. It will increase your memory power. It will reduce your stress. Okay. So many things with simple Jnana Mudra. That's why when you perform the Havan, then also your teacher, your spiritual practitioners, your yoga teacher, even in the school also says that, okay, do the Jnana Mudra, make these postures, close your eyes, chant the Om, chant mantras, okay, do the meditation. Cannot hear? I'm audible to everyone? Yes, Navidji, you are. Okay. Okay. So now it is from ancient time and we are practicing. Now I know the knowledge why we are doing these things. Okay. So this is what the purpose of the energy. But the second purpose I told you. Second purpose of the mudra is making the communication. Communication with God. Okay. Communication, when we say God is a single, but there is also different types of the layers. You know that. I think there is a Pitarlok, Manushya-lok, Pitralok, Yaksh-lok. Okay, you know that. Gandharva-lok, Dev-lok, then Vaikuntha-lok. We have a different levels, and all the levels have a different types of the communication. All the levels have a different type of the communication language. And that non-verbal communication comes under the mudra. Without speaking, just showing the mudra. Different types of the mudra. You know that. If the peoples know, they can communicate. If people don't know, they have to learn it. They should learn it. Okay. Otherwise, you will you not able to communicate with that subtle words that is not visible but exist. Okay. It's very simple. As you dial number on the mobile and you communicate with the person. So mudra is a like a communication channel, communication medium. So different types of mudra, different types of the communication. In the same way, we have the lower dimension of the existence, like patal, sutal, atal, like this. And the last one is the patal lok, lower dimension, like from the Mooladhara chakras to the lower 7 dimension is downward. So there is also a communication medium by which you can communicate. The medium is the mudra.
Okay, but these types of mudra is not publicly popular. Okay, you know, our rishis are very very intelligent, so they know what must be popularized and what should be secret. Okay, इसीलिए आप सबको ये सारी चीजें नहीं बताई गई कि क्या क्या मीडियम होता है. Nowadays, many Instagram and YouTubers are creating some kinds of the videos, like how to worship Shiva, how to worship Ma Gayatri, how to worship Durga, how to worship this. And in these worship, they show some types of different types of the mudra. Okay, so I think for today it's enough because it's a very deeper concept. We need to go to the Tantra tradition also, because in the Tantra, different types of things are there. Okay, so always remember, mudra is first form is who provides you the blissfulness, like feel very happy. If you are stressed, if you have anxiety, if you have a depression, if you are not getting any types of conclusion from your mind, so mudra will help you. Okay, that's why mudra is superior than your asana and the pranayama. Mudra is the superior than asana and the pranayama. Okay, that's why first of all you have to master the asana, then do the pranayama, and then do the mudra, third level mudra. So very important. We have different types of now going to the discuss about third form of the mudra. Third point is the mudra is rupees. Mudra is rupees. Okay, mudra also is like a stamping. Stamp also the mudra. Okay, stamp also the mudra, rupees also the mudra. Okay, any kinds of the symbol, this is also one form of mudra. Okay, medals also the one form of mudra. Okay, so in the ancient time, we sometimes on the hands, maybe on the body, sometimes we stamp with some ancient techniques. आज के डेट में तो उसको हम लोग what we say tattoo, what we say tattoo, like tattoo culture. So we imprint on the different things. Okay, if we discuss about the Kaul Tantra, the Kaul Marg. Kaul Marg is the one types of Tantra. So in the Kaul Marg, there is one definition you can say. So mudra means remove. It is the method to remove the negative energy from your body. Okay. Negative emotion, that means that is suppressed emotion from inside. So it must be removed from your body. So we use mudra in the Kaul Marg to remove the negative energy from the negative emotions, okay, from our body, physical body, subtle body, causal body to the outside, and then focus on the supreme energy that is known as Paramatma, super conscious. Okay, universal consciousness, you can say cosmic energy. Try to connect it. Okay, so this is what the Kaul Marg. Now coming to this, different types, we have categorized it, different types of mudra. Hasta mudra, very simple, mudra that is performed by the hand. Hand means on fingers, by the fingers. Okay, we have 5 fingers here, 5 fingers here. So using these fingers, we do the Hasta mudra. Sirsa mudra, that means the mudra that performed by the head. Sirsa mudra. So by eyes, your nasika, mouth, ear, all these things that perform by the upper area of the body is Sirsa mudra. Adhar mudra. Third one is the Adhar mudra. Adhar mudra, like your perineum regions, like mudra that is performed by the Adhar,
like when you sit on your hip areas, perineum regions. So any mudra that is performed by this, so it comes under the Adhara mudra. Fourth one is the Kaya mudra. Kaya mudra, that means mudra that is performed by the whole body, right? Performed by the whole body, that is known as Kaya mudra. Basically, it looks like a asana practice, but it's not the asana, it's a mudra. There is a difference, okay, in the asana and mudra. Fifth one is the yogic mudra and bandh. So if you know the yogic technologies like terminologies like Uddiyana Bandha, Jalandhar Bandha, Moola Bandha. So it comes under this yogic mudra and bandh. Okay, so this is all 5 types of the mudra categorization. Clear? And in today's session, we are going to discuss in the Hasta Mudra, about the Hasta Mudra. Okay, Hasta Mudra also categorized in different more sense, like Panchatattva Mudra, Prana Mudra, Yogic Mudra. Okay, again it further classified. So today we will just focus on the Panchatattva Mudra. Okay, it's more effective, and we will also practice, and we'll know about the therapeutic aspects of the Panchatattva Mudra. Okay, only the Panchatattva Mudra. So today's session will be on the Panchatattva Mudra. I hope in 20-25 minutes you understand what is the meaning of mudra, okay, and what is the purpose of mudra, like making the communication. First purpose. Second purpose is to be happy. Okay, this is the 2 purpose of mudra. And then categorization. So categorization by the 5: Hasta Mudra, Sirsa Mudra, Adhara Mudra, Kaya Mudra, and Bandh, Yogic Mudra and Bandh. I hope this is clear. Okay. So coming to the Panchatattva Mudra. Anybody can tell me about what is Panchatattva? You can either type or you can just say. The 5 elements. Very good. The 5 elements. 5 elements is very important because that exists in our body also. Our body is made from the 5 elements. Okay. And outside also as the 5 elements. Okay. Chiti, Jal, Pavak, Gagan, Samira, right? Chiti, Jal, Pavak, Gagan, Samira. So this is what the 5 elements. But anybody can tell me about what is the first element in the Panchatattva? Akash. Akash, very good. So Akash, as the Big Bang Theory also now accepting, like the explosion happens. What we say, the creation of the universe from the Om sound, right? So the Big Bang Theory also says that, like an explosion happens, then sound, and then Akash Tattva created. Okay. So first element is the Akash element. Second element will be Vayu. Vayu, yes. And then third element after the Vayu? Fire. Yes, very good. Agni. Okay, so fire element. And the fourth one is? Prithvi. No, fourth one will be the Jal. Jal. Yes, Jal. Because Jal also have the fire element inside. And fifth one is the? Prithvi. Yes, earth element, Prithvi. So these are the sequence of the 5 elements. Now we need to understand how these 5 elements connected with our 5 fingers. Okay, so if we can understand these elements in our fingers, so we can balance it. So usually the problem happens when these 5 elements get disturbed
when it disturbs, then it creates a different types of the problem in our life. Okay, as you know that Akash Tattva, if Akash Tattva get disturbed, so connected organ is the ear. It will like your hearing problem happens. And Akash Tattva is also the vacuum in our body. So it will disturb the whole body also. Okay. So that's why Akash Mudra, if we do the Akash Mudra, it will balance your Akash Tattva. Okay. So that's why we need to understand which is related with this. So I'm going to just show you the fingers, one picture, and then you can connect it. Okay. This is visible. Yes, it is, doctor. Yes. It's an image. I will share this image to you also. Now you can understand by this image. Where is the Akash Tattva? Akash is here. Right? Middle finger. Oh, can't see. You have to make it broad, I think. Large. Navinji, Only can see you the- make it enlarge? Yes. Yes. Now it's visible. Not yet. No, not yet. Only the thumbnail can be seen. If you can double click over there, just double click on the image. No, it's I think आप अपने फिंगर से भी बता सकते yes. I think it will be easy for you. This one. Yeah. Okay. So this is what the Akash Tattva. This one. Okay. Akash Tattva. And the mudra will be this one. Akash Mudra. Everyone is visible? Easy? Yes. Got Okay. it. I Akash have a Mudra. question सर कि अगर यहाँ पे ये आकाश होता है अगर बीच में पकड़ते हैं या नीचे पकड़ते हैं तो उसका क्या लॉजिक है और कौन सी मुद्रा होती देखिए है ये बहुत बेसिक है ये तो पता भी है सब जी देखिए इसमें सबसे पहले तो आपको एक एनर्जी का सिद्धांत समझना पड़ेगा कि इसमें क्या होता है कि हमारी ये जो पोर्स होते हैं ना ये जितने भी यहाँ से एनर्जी रिलीज होती रहती है। एक तो रिलीज होती है, दूसरा हम जब हम कंसंट्रेट करेंगे तो एनर्जी हम यहाँ से रिसीव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो हमारा तरीका ये होता है कि जब ये हमारी जो फिंगर है, जैसे इसको हमने बता दिया आपको आकाश तत्व, तो ये जब आकाश तत्व है तो आकाश तत्व से जो एनर्जी हमारी बाहर की तरफ ड्रेन हो रही है, तो उसका हमारा पर्पस ये है कि ये एनर्जी जो ड्रेन होती जा रही है उसको हम पहले सर्किट बनाकर रीडायरेक्ट कर दें। हाँ ठीक है, उसके जो उसका एक चैनल क्रिएट कर दे ताकि वो एनर्जी जो पहले ड्रेन हो रही है वो हमारे अंदर आना स्टार्ट हो जाए। पहला हमारा कंसेप्ट ये होता है। ठीक है, और दूसरा उसके बाद जो आपने ये पूछा, इस पर्पस से हम लोग ये मुद्रा लगाते हैं। कई जगह आपने देखा होगा कि रूट पे हम वो करते हैं, रूट पर हुआ, या कई बार हम प्रेशर देते हैं कि ये हमने थोड़ा सा प्रेशर दे दिया। हाँ देखिए इसमें क्या होता है, इसमें भी 3 सेक्शंस हैं, आप देखिए उंगलियों के। ठीक है, तो इसको हम लोग हेड का एरिया मान लेते हैं, अपर पोर्शन है, ये मिडिल पोर्शन है और ये लोअर पोर्शन है। तो उसमें किस पोर्शन में आपके प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग मुद्राएं बनाई गई। ठीक है, तो जैसे कई बार आप देखिए कौन सी मुद्रा है जो आपके इस तरीके से लगाई जा रही है, तो उसमें शून्य वायु। हाँ, तो उसमें अब आप देखिए कि उसका बेनिफिट क्या है, किस बॉडी पार्ट को वो इफेक्ट डाल रहा है,
उसलिए हम लोगों, जैसे अब यहाँ पर आकाश में ये हमारा क्या है, सीड्स का एरिया है, कान की प्रॉब्लम है, थ्रोट का एरिया भी हमारा इसी में आ जाएगा। इन सबको हमें अगर बैलेंस करना है, प्रॉब्लम से हटाना है, एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करना है, तो हम यहाँ पर ये लगा के रखते हैं। ठीक है। अब देखिए एक मुद्रा में आपको और बता देता हूँ, जैसे एक होता है ये ज्ञान मुद्रा, ये सब जानते होंगे। ठीक है। अब इसमें ज्ञान मुद्रा में हम जो लगा रहे हैं यहाँ पर देखिए, इसका काम है मेंटल, मतलब हमारी जो कंसंट्रेशन है, जो विचार हमारे ज्यादा आ रहे हैं उसको कंट्रोल, Hormones. हेड एरिया है। लेकिन इसी में एक मुद्रा हम लोग ऐसे लगाते हैं, चिन्ह मुद्रा। हाँ. अब वो कहाँ चला गया है चिन्ह मुद्रा, हम और डीपर में जाके अनकॉन्शियस लेवल तक की अगर चीजें हमें देखनी होंगी तो हम डीपर कंसेप्ट में ये हम लगा देते हैं नीचे की तरफ। ठीक है। तो हमारा पर्पस क्या है, उस पर्पस के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ द मुद्राएं बनाई गई। ठीक है। कई बार, अब एक आपने मुद्रा पता नहीं देखा होगा कि नहीं, ये पास मुद्रा भी होती है। अब आप कहेंगे इसकी क्या जरूरत है, तो यहाँ पर जब कोई चीज बांधनी हुई तो उस पर्पस से मुद्राएं बनाई गई। तो इसमें आपको बस थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ेगा कि पर्पस क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, तो आपको तो सर वही जैसे अब आपने बताया कि अगर ये वाला वायु वाली मुद्रा को अगर यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया या यहाँ लगाया तो क्या फर्क पड़ता है, और थंब को यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया तो मतलब कौन सी चीज इसमें वायु में और अग्नि में कैसे लॉजिक वो कैसे होता है वो बताइए। देखिए एक तो आप ना इसको 3 भागों में बांट लीजिए, इसका आंसर आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। एक इसको शीर्ष प्रदेश मान लीजिए, इसको मिडिल प्रदेश मान लीजिए, इसको लोअर ले लीजिए। अब इसी तीनों बॉडी को आप कैटेगराइज कर दीजिए 3 सेक्शंस में, और उन्हीं 3 सेक्शंस के अकॉर्डिंग आप उसको देख लीजिए। और थंब में 2 सेक्शन होंगे। हाँ, थंब एक्चुअली देखिए, जो आपका ये थंब है ना, वो आपको ये क्योंकि कई जगह आपको ये फायर एलिमेंट दिखाएगा, ये फायर एलिमेंट है एक्चुअली। करेक्ट। तो फायर एलिमेंट इसलिए सब जगह जुड़ जाता है कई जगह, क्योंकि फायर में ही वो एनर्जी होती है जो ट्रांसफॉर्म कर सके किसी चीज को। ठीक है। जब कोई भी चीज ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको फायर की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए फायर जो है हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। और इसमें देखिए इसका 3 सेक्शन होता है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऊपर का एरिया हो गया, ये मिडिल हो गया, और ये जो पूरा एरिया आ रहा है ना, ये नीचे का, ये तीसरा सेक्शन में जाता है। ओह अच्छा। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है जी। तो चलिए, आकाश तत्व क्लियर हो गया। हमें लगता है कि आकाश तत्व में दिक्कत नहीं होगी। आकाश में सिंपल आप लगाइए जो मिडिल फिंगर है, जिसको हम लोग मध्यमा कहते हैं, क्योंकि यही सबसे लंबी उंगली होती है, मध्य में होती है, तो मध्यमा। ओके। आप इसमें ये मुद्रा लगा के रखिए। 15 मिनट सुबह लगाइए, 15 मिनट दोपहर में लगाइए, 15 मिनट शाम को लगाइए। तो ये टोटल मिलाकर 45 मिनट होता है। ठीक तो है। ये सर ये खाली इस एरिया में काम करेगा, अगर आपको मिड सेक्शन में करना है तो यहाँ लगाने का। हाँ, वहां भी और लगा सकते हैं, और भी मुद्राएं हैं। और पाँव में लगाने का है तो आप कह रहे हो कि यहाँ लगाने हाँ, का, आप यहाँ लगा है ना? लीजिए। लेकिन हाँ बिल्कुल, वहां से रिलेटेड जो आकाश तत्व होगा वो बैलेंस करेगा। लेकिन एक चीज आप और देखिएगा, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी मुद्राएं होती हैं, क्योंकि मिड बॉडी में जैसे आपका लंग्स आ गया, आपके ये आपका हार्ट आ गया, आपका स्टोमक आ जाता है, ये सब मिड बॉडी पार्ट में आ जाता है। तो इससे रिलेटेड भी और सी मुद्राएं हैं जो ज्यादा इफेक्टिव है, तो इसलिए उन मुद्राओं का प्रचलन ज्यादा हुआ है। शक्ति मुद्रा और वो सब। हाँ, बहुत सी मुद्राएं हैं, मतलब यहाँ तो भी डिस्कस करेंगे तो पता लगा टाइम बहुत चला जाएगा। लेकिन सर एक, हाँ, लंग्स मुद्रा, लंग्स के लिए कौन सी मुद्रा है अभी सर? बताते हैं हम लोग। वायु मुद्रा में जब आएंगे ना तो उसमें ही आपको ये चीजें मिल जाएंगी। ठीक ओके है। सर। हाँ, तो आकाश तत्व में आप पहले देख लीजिए क्या क्या चीजें आपकी होंगी। आप पहले आकाश तत्व को समझ लीजिए। ठीक है। सर आकाश में ही एक और क्वेश्चन ऐसे था कि ये तो सामने का हो गया और ये पीछे का भी भाग है, वो पीछे का भी बताना प्लीज ही। अच्छा, वो यिन और यान की थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा।
तब वो क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से करना है। लेकिन देखिए यहाँ पर ऐसी चीजें, देखिए यहाँ इसलिए ऐसी चीजें बना दी गई हैं कि भाई आप बस, जैसे होता ना, डॉक्टर ने दवा बना दी, अब बस लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम रिसर्च में जाएंगे तो बहुत सी चीजें इसमें से निकलती हैं। जी देखिए, आकाश मुद्रा से आपको क्या क्या फायदा मिलेगा। जैसे कई बार कान में दर्द हो रहा है तो आकाश मुद्रा लगा लीजिए। कान चूंकि आकाश तत्व ईयर से संबंधित है, ठीक है। या कान में कई बार पानी बहता है, मतलब अजीब सा गंदा सा पानी निकलता है, आप लगा लीजिए आकाश मुद्रा, ठीक है। जोड़ों में अगर दर्द हो रहा है, ज्वाइंट्स पेन में भी आकाश मुद्रा काम करेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया जहां पर भी वैक्यूम जैसा कुछ भी होगा, आकाश तत्व वहां पर विराजमान है। तो जहां जहां पूरे शरीर में आकाश तत्व होगा वो होगा। थॉट प्रोसेस जो होती है हमारी, विचार, उसको भी ये मैनेज करता है, बैलेंस करता है, ठीक है। थॉट प्रोसेस जो हमारी होगी, तो जैसे जिनका मन बहुत चंचल होगा, बहुत चंचल जिनका मन है, उनको आप आकाश मुद्रा भी सजेस्ट कर सकते हैं। वैसे तो ज्ञान मुद्रा है, लेकिन आप आकाश मुद्रा भी उनको सजेस्ट कर सकते हैं। सर जॉइंट पेन के लिए आपने बताया तो आकाश मुद्रा ये वाली है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, यही आप यही अभी लगाइए बैलेंस करने के रिंग लिए। फिंगर? हाँ, रिंग फिंगर नहीं, देखिए रिंग फिंगर तो आपकी अनामिका होगी, मिडिल फिंगर। अच्छा, मिडिल फिंगर, ये आकाश मुद्रा है। मिडिल फिंगर मैंने आकाश मुद्रा है। मैंने थोड़ा लेट देखा आपका मैसेज, तो अच्छा, कोई इसलिए। बात नहीं जी, ये तो वो आकाश मुद्रा आपके क्योंकि लिए। मेरे हाँ, जॉइंट पेन जैसे रहता है, तो ये जॉइंट पेन में फायदेमंद है। आप आकाश मुद्रा लगाइए, बिल्कुल फायदा वो करेगा। 15-15 मिनट जो अभी आपने बताया। 15 मिनट आप लगाइए। ठीक है। Okay, sir. Thank you very much. जी जी I जी। also had the same question. हाँ, ओके, ठीक है। आकाश तत्व विशुद्धि चक्र को भी प्रभावित करता है, विशुद्धि चक्र, ठीक है। तो विशुद्धि चक्र जो आपका है वो भी बैलेंस होगा जहां पर कम्युनिकेशन आ जाता है, ठीक है। आकाश तत्व का संबंध जो है कम्युनिकेशन से भी होता है, ये क्योंकि बोलेंगे तभी सुनाई देगा, ठीक है। तो आपका जो कम्युनिकेशन है विशुद्धि चक्र से ही होता है। तो अगर आपका बेटर कम्युनिकेशन है, बोलने में कहीं दिक्कत आ रही है, हकलाहट हो रही है, तो भी आप आकाश मुद्रा को सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका विशुद्धि चक्र है जो आपको बैलेंस प्रोवाइड कराएगा, कम्युनिकेशन। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी, कम्युनिकेशन यहाँ पर फिजिकल तो है ही है, लेकिन सटल कम्युनिकेशन भी है। सटल कम्युनिकेशन का मतलब इनविजिबल कम्युनिकेशन भी आपका होगा, जैसे कि जो चीज दिखाई नहीं दे रही है उनके साथ भी आपका कभी कभी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश जाने अनजाने में हो जाता है। जाने में हो तब तो ठीक है, अनजाने में होता है तो दिक्कत आती है, ठीक है। तो आकाश तत्व तो इस चीज को भी मैनेज करता है, बैलेंस करता है। देखिए ये सब हमने जो बताया है वो आपका इमोशनल लेवल पे भी हमने बता दिया, फिजिकल लेवल पे जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी हमने बता दिया है, ठीक है। और इसके जो लाभ हैं आकाश मुद्रा से वो हमने आपको बता दिए। तो आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। मुद्राओं को करने से पहले एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो आप लोग हमेशा यही कहेंगे कि हमने मुद्रा किया और कोई फायदा नहीं हुआ सर, ठीक है। क्योंकि ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुद्राएं तभी काम करेंगी जब आपकी एनर्जी बॉडी वो क्लीन होगी। आप ये कहिए कि तुरंत बटन दबाया और असर होगा, तो ये एंशिएंट जो भी टेक्निक्स हैं ये काम उतनी इफेक्टिवली नहीं करेंगी। दूसरा, पेशेंस चाहिए होगा, धैर्य रखिए, क्योंकि आपने अभी आकाश मुद्रा लगाया, एनर्जी चेंजेस होना स्टार्ट हो चुकी है, राइट। अब आपने सोचा कि कुछ फायदा नहीं हो रहा है, आपने रिलीज कर दिया, तो जो एनर्जी चैनल्स हैं उसको भी कंप्लीट सर्कल पूरा करने में टाइम लगता है। तो इसलिए हम लोग हमेशा यही कहते हैं कि कम से कम 3 महीने तक अगर आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे, और मुद्राओं को करने का एक नियम है, हर व्यक्ति आपको ये बता देगा कि ये लगा लीजिए, ये लगा लीजिए, ये लगा लीजिए, हो जाएगा।
तो ये लगाते रहिए, कभी कुछ नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया आकाश मुद्रा लगा लीजिए, आपको फायदा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अगर एग्जैक्टली फायदा लेना है तो उसकी प्री प्रोसेस बहुत होती है, कि जैसे सबसे पहले तो आसन करवाएंगे आपको, फिजिकल बॉडी क्लिंजिंग। फिजिकल बॉडी क्लिंजिंग के बाद फिर आपका सटल उसमें आएगा नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन प्राणायाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मुद्राओं से बेनिफिट लेना है तो यू हैव टू डू द नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन करिए, फिर आप मुद्राएं लगाते रहिए। तो 15 मिनट तक नाड़ी शोधन का अभ्यास आप करिए सबसे पहले, आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, या आप लोग कर ही रहे होंगे क्योंकि आप लोग ऑलरेडी लीडर्स हैं, तो आप सबको उस चीज की प्रैक्टिस ऑलरेडी है। तो अगर आप एक लंबे समय से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं तो अभी आप आकाश मुद्रा के उस लाभ को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, महसूस करने में क्या करना है आपको, आप पहले तो सबसे पहले कमर गर्दन सीधी करके बैठना होता है। जब हम अपने शरीर को किसी और पे डिपेंडेंट कर देते हैं, मतलब जैसे ही हमने ऐसे टेक लिया, नाउ मैंने अपना कंट्रोल खो दिया, अब हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हमने अपनी चीजें डिपेंडेंट कर दी। तो जैसे ही हमने ये किया मतलब हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि आपकी स्पाइन स्ट्रेट हो, कमर सीधी हो, आप तकिया लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए। ये आप जब करते हैं तो आप अपने कंट्रोल में हैं, ना कि किसी और के कंट्रोल में। ठीक है, अब आप जब कंट्रोल में आ जाते हैं, आंखें बंद करते हैं, 5 मिनट का अभ्यास करके देखिए आप आकाश मुद्रा का। आंखें बंद करिए, कमर गर्दन सीधी करिए, आंखें बंद करिए, कमर गर्दन सीधी करिए। जो मन कहीं इधर उधर भटक रहा है उन सबको थोड़ा सा ब्रीदिंग पर लगाइए, श्वास प्रश्वास पर लगाइए। श्वास और प्रश्वास पर इसलिए हम लगवाते हैं ताकि आप जो सूक्ष्म सटल चेंजेस हो रहे हैं, यू कैन फील ऑल द सटल चेंजेस इन योर बॉडी। इट्स अ वेरी सटल, जैसे कि बहुत से सूक्ष्म कण होते हैं, लाइक वी नीड ए माइक्रोस्कोप टू विजुलाइज। वैसे ही बॉडी के जितने भी सूक्ष्म चेंजेस हो रहे हैं, सटल चेंजेस हो रहे हैं, उसको महसूस करने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप में कंसंट्रेट करना है। अब आपने आकाश मुद्रा लगानी है। आकाश मुद्रा आप लगाइए इस तरीके से जैसे आपको मैंने बताया था। आकाश मुद्रा जैसे ही आप लगाते हैं तो आकाश तत्व आपके शरीर में जहां जहां पर है वहां वहां आप देखिए, आपको हलचल, हल्की हल्की हलचल महसूस हो जाएगी। आकाश तत्व जैसे ही आप लगाएंगे, जैसे कि आपको फेफड़े के पास लंग्स में थोड़ी हलचल आपको महसूस होगी। लार्ज इंटेस्टाइन, नाभि का एरिया, नाभि प्रदेश, नाभि से थोड़ा सा नीचे, लार्ज इंटेस्टाइन में आपको एक सेंसेशन फील होगा। थ्रोट एरिया, थ्रोट विशुद्धि चक्र में भी आपको थोड़ा थोड़ा सेंसेशन फील होगा। आकाश मुद्रा लगाइए, 5 मिनट बैठे रहिए और इन सब जगहों पर आप महसूस करिए क्या कुछ हो रहा है। धीरे धीरे आप ये भी देखेंगे कि आपका जो शरीर है वो बाहर के जो आकाश तत्व है उससे भी प्रभावित होगा। So, आकाश मुद्रा is very beneficial for the ear problem, joints pain, beneficial for your lungs, it's beneficial for your large intestine, it activates and balances your Vishuddhi chakra that is responsible for communication.
communication in the form of physical and communication in the form of subtle also, visible and invisible. When we do the Akash Mudra, try to feel the sensation on your physical body related with the Akash Tattva element, like your Vishuddhi Chakra near to the throat area, lungs area, near to the navel area, and all the joints. It will also helpful in the anxiety. It relief from the anxiety. It relief from the stress. It's also helpful if you are feeling problem with the lots of thought, excess thought. Then also Akash Mudra is beneficial. Two minutes more. You just continue the Akash Mudra. Okay, release and relax. ओके, धीरे से आंखें खोल लीजिए। देखिए एनर्जी आप लोगों ने किया कोई अपने एक्सपीरियंसेस? आकाश मुद्रा जब आपने किया तो ये 5 मिनट का अभ्यास है, ठीक है। 5 मिनट के इस अभ्यास में हमें बहुत से सेंसेशंस फील हुई होंगी, अलग अलग तरीके। कई बार प्रॉब्लम अलग अलग तरीके की आती है, जैसे हम स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं या हमारा मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये सब हमारे फिजिकल लेवल की समस्याएं हैं। इन सबको हमें पहले कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। जब हम ये कंट्रोल करेंगे तो हम इसके मुद्राओं का इफेक्ट क्विकली समझ पाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप कम से कम 15-15 मिनट करके 3 बार आप करिए, और अगर हो सके तो आप 45 मिनट कंटिन्यू करिए। तो जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप आकाश मुद्रा लगा लीजिए, या आपकी जो रिलेटेड प्रॉब्लम है उससे, ठीक है। ज्ञान मुद्रा जनरलाइज्ड है, क्योंकि आपको कंसंट्रेट करना है, इसलिए ज्ञान मुद्रा जनरलाइज्ड हो चुकी है। लेकिन अब आपकी अपनी क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप मुद्रा का अभ्यास करिए। आगे बढ़ते हैं, वायु मुद्रा पे आते हैं। जी, वायु मुद्रा में देखिए, वायु मुद्रा का जो अभ्यास हम लोग यहाँ पर करेंगे, वायु मुद्रा पहले हमें ये समझना है कि वायु तत्व कौन सा है। ये है, ठीक है, जो आपकी तर्जनी उंगली हम लोग इसको कहते हैं, फर्स्ट फिंगर, तर्जनी उंगली, ठीक है, फर्स्ट वन। तो ये आपका है वायु, वायु एलिमेंट, इसको हम लोग कहते हैं वायु, एयर, ठीक है। तो इसमें देखिए, अब वायु मुद्रा हम लोग कैसे लगाएंगे, इस तरीके से भी लगा सकते हैं, लेकिन अब ये ज्ञान मुद्रा प्रचलित है। अब इसके पीछे का विज्ञान समझ लीजिए। ये जो वायु है, जब वायु डिस्टर्ब हो जाती है तो हमारा मन चंचल हो जाता है। एयर एलिमेंट है, एयर ऑल द टाइम फ्लोज, कैन नॉट स्टेबल एट वन प्लेस, फ्लोइंग एंड फ्लोइंग, ठीक है। आयुर्वेद में वात कहते हैं इसी को, कि ये मान लीजिए
घूम रहा है तो जस्ट एक अभी आपको पेन यहाँ हो रहा है, देन पेन विल शिफ्ट टू द अनदर प्लेस. सो एयर क्वालिटी इज मूविंग. टू मच थॉट प्रॉब्लम, एक्सेसिव थॉट, और जिनको वायु तत्व डिस्टर्ब हो जाता है, डिसबैलेंस होगा, इंसोम्निया प्रॉब्लम होगी, उनको रात में नींद नहीं आएगी, इंसोम्निया. 11 बजे तक, 12 बजे तक, 1 बजे तक जगे हुए, 2 बजे तक नींद ही नहीं आ रही है. जब तक वायु एलिमेंट, एयर एलिमेंट एक्टिव होगा तब तक आप नहीं सो पाएंगे. रात में 11-12 बजे से लेकर 1 बजे तक, 1:30 बजे तक एयर एलिमेंट एक्टिव हो जाता है. इस बीच अगर आप उसके पहले सो गए तो ठीक, नहीं तो फिर आपको नींद आने में बहुत प्रॉब्लम होगी. तो यहाँ पर देखिए, अपर पोर्शन हमारा ब्रेन का एरिया हुआ, तो हमने क्या किया, ज्ञान मुद्रा नाम से इसको बोल दिया कि आप जब यहाँ लगाएंगे तो आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, ज्ञान मिलेगा. पर्पस क्या था, एयर एलिमेंट को कंट्रोल करना. एयर एलिमेंट जब कंट्रोल होगा तो आपका थॉट प्रोसेस कंट्रोल होगा. थॉट प्रोसेस कंट्रोल होगा, आप फोकस्ड होंगे. फोकस्ड होंगे तो जो सीखेंगे वो सीख पाएंगे. नहीं तो अभी आप सेशन में बैठे हैं यहाँ पर और मन कहीं और, किसी प्रोजेक्ट में, हो सकता है भूख लगी हो तो किचन में, थिंकिंग फॉर द फूड, मे बी सम अदर एक्टिविटीज, योर माइंड इज समवेयर. फिजिकली यू आर प्रेजेंट हेयर बट मेंटली यू आर नॉट प्रेजेंट हेयर. तो इसीलिए कहा जाता है ज्ञान मुद्रा. तो वायु तत्व को कंट्रोल करते हैं हम लोग यहाँ से. तो यहाँ अब जो वायु मुद्रा हम लोग लगा रहे हैं, बेसिकली वायु मुद्रा हम लगाएंगे, किस तरीके से लगाएंगे वायु मुद्रा, रूट पे जाके, रूट पे ये ऐसे. ज्ञान मुद्रा हमने आपको बता दिया, अब हम रूट को कवर कर रहे हैं यहाँ पर, रूट को. ठीक है, रूट. तो ये है हमारा वायु मुद्रा. देखिए इससे प्रॉब्लम क्या होगी, इफ यू हैव प्रॉब्लम विद द फीट, कह लीजिए पैरों में, एड़ियों में सूजन आ रही है, जैसे आपने देखा होगा कि एड़ियों में सूजन आ जाती है, बहुत दर्द होता है, हील्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है हील पेन, राइट. एंकल ज्वाइंट के पेन के लिए वायु मुद्रा आप लगाइए, एंकल ज्वाइंट. ओके. पैर की प्रॉब्लम, अगर आपके पैरों में दर्द हो रहा है, लेग्स में प्रॉब्लम है, वायु मुद्रा लगाइए, राइट. क्योंकि ये तो ज्ञान मुद्रा हो गई, मैंने आपको बता दिया है. अब ये जो है आपके लोअर बॉडी पार्ट को ये कवर कर रहा है. तो रात में स्वेटिंग बहुत होती है, अगर आपको स्वेटिंग बहुत हो रही है तो वायु मुद्रा लगाइए. वायु मुद्रा को, इसका मतलब अगर स्वेटिंग हो रही मतलब वायु एलिमेंट, आपकी एयर एलिमेंट डिस्टर्ब हो चुकी है. ठीक है. एड़ियों में दर्द हो रहा है मतलब एयर एलिमेंट डिस्टर्ब है. सिम्टम्स भी मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है. हाथों पैरों में प्रॉब्लम अगर हो गई है, दर्द हो रहा है, दैट मीन्स योर एयर एलिमेंट इज डिस्टर्ब्ड. ये दीज आर द तो सिम्टम्स. आवाज नहीं आ रही है. It's clear to us. हमें तो आ रही है बस. ओके Quite clear. ओके ओके ओके. एंड एयर एलिमेंट आप कहाँ, और आप क्या कह सकते हैं, वायु तत्व हमारा अनाहत से कनेक्टेड है, वायु है, राइट. सो वायु तत्व जो हमारा है, इंडेक्स फिंगर हमने आपको बताया, ये जो आपकी प्रथम उंगली हो गई. ठीक है. वायु तत्व का जो एलिमेंट होता है, वायु तत्व एलिमेंट, उससे कनेक्टेड क्या है, आपकी पूरी स्किन, स्पर्श, व्हेन यू टच समवन, तो वो एयर एलिमेंट. और टच इज रिलेटेड विथ योर इमोशंस, वहां अनाहत चक्र आता है, हार्ट आ जाता है, हृदय जिसको हम लोग कहते हैं. ठीक है. तो हृदय से संबंधित भी अगर कोई समस्या आ रही है, देन वायु मुद्रा आप इस तरीके से रूट में जाके लगाइए ऐसे. तो ये आपका वायु मुद्रा हो जाएगी. तो वायु मुद्रा से आपको क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं, हेल्पफुल इन द हार्ट प्रॉब्लम, helpful in the joints problem like ankle joints, heel, legs and hand joints. ये सब आपका वायु तत्व के अंतर्गत आएगा और ये आप इससे हील कर सकते हैं. चक्रों की अगर हम बात करें तो यहाँ जो चक्र है हमारा, वो हार्ट, हृदय चक्र, अनाहत. ठीक है. तो अनाहत चक्र आपका अगर डिस्टर्ब हुआ है तो उसको भी हम बैलेंस कर सकते हैं वायु मुद्रा लगाकर. क्लियर हुआ सर जॉइंट्स का अपने
आकाश तत्व भी बोला था, तो आकाश दोनों तत्व में ज्वाइंट्स बोला है, और यहाँ पर हमने फोकस किया है सर एंकल ज्वाइंट्स पर, और पूरे पैर, लेग्स में नी अगर नी कहीं पेन हो रहा है, एंकल ज्वाइंट और बेसिकली हील, जो आपका हील है, एड़ी, वहां अगर दर्द हो रहा है तो एयर एलिमेंट है। तो नी पेन के नी लिए नी खास बताइए। जी, आकाश नी 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 पेन पेन के लिए अलग मुद्रा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उसका कनेक्शन किसी और के साथ भी है, लाइक बिकॉज इट्स डिसीज। सो एक सिम्टम, जैसे नी पेन को डायरेक्टली आप वो नहीं कर सकते, कोरिलेट नहीं कर सकते, सो देयर इज अदर सिम्टम्स ऑल्सो। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर 2-3 चीजों पे फोकस कर रहे हैं कि एंकल ज्वाइंट हील, ये है तो वायु मुद्रा आप लगाएंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। ठीक है, So for gastric, gastric I have very good mudra for you. It comes under the प्राण मुद्रा। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, ये जो मुद्रा होती है आपकी, ये वाली अपान वायु मुद्रा इस तरीके से लगेगी। देखिए, ये तो वायु मुद्रा हो गई, और ये अपान लगा दीजिए। तो अपान वायु मुद्रा आप जब लगा के रखेंगे लगातार 45 मिनट तक, मतलब ये आप बस लगा के रखिए, और अगर नहीं हो पा रहा है 45 मिनट, 15-15 मिनट करके लगाइए। तो अपान वायु मुद्रा जब आप लगाएंगे तो ये आपके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, क्योंकि वायु मुद्रा के जितने बेनिफिट्स हैं वो सब आपको मिलेंगे। सर वायु मुद्रा तो ये थी ना, ये तो शून्य वायु, शून्य अपान नहीं होती है, देखिए, अपान। ऐसे नहीं, देखिए ऐसे लोगों ने बहुत से नाम बना रखे। ठीक है, उसमें फिर अगर आप जाएंगे तो इट विल क्रिएट अ कंफ्यूजन। इसीलिए मैं आपको बहुत ही क्लियरली मेंशन करता जा रहा हूं कि क्यों ऐसा है, उसका रीजन क्या है। नहीं तो फिर बहुत सी मुद्राएं हैं, एक मुद्राओं के 3 नाम है। ठीक है, तो कुछ लोग उसको शून्य मुद्रा के नाम से जानेंगे, कोई उसको वायु के नाम से जानेगा, कोई तीसरा कुछ और नाम से भी जान सकता है, हृदय मुद्रा के नाम से भी जान सकता है। ठीक है, तो इसलिए उसमें कंफ्यूजन होगी। आप सीधे एलिमेंट के आधार पर चलिए, पंच तत्वों के आधार पर चलिए, तो कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, सर तो ये can we ask questions at the end of the session please, because अभी हम लोग वायु पे है ना, वायु के बारे में बात करेंगे। डोंट माइंड एवरीवन प्लीज, टू मच ऑफ कंफ्यूजन हम लोग लिख रहे हैं, सो देयर इज कंफ्यूजन, यू नो कौन सा मुद्रा है, कौन सा वी आर डिस्कसिंग। सो सर आप बता दीजिए क्वेश्चंस लेटर करके प्लीज। ओके ओके विल यू शेयर द रिकॉर्डिंग्स, बिकॉज इतने याद नहीं रहेगा। We will share the recording. Let the session be completed. सर रिकॉर्डिंग As मिलेगी per the तो flow, we will share the recording. थैंक यू। ओके ओके, सो अपान वायु मुद्रा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सर, रिकॉर्डिंग मिलेगा तो। अपान वायु मुद्रा, it's related with the heart, it's related with your constipation, it's related with gastric problem. Okay, yes. इन सबसे रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम, वायु मुद्रा का अभ्यास करिए रेगुलर। राइट, आगे चलते। सो वायु मुद्रा आई होप अंडरस्टैंड। यस Do you know that, like, due to sometimes mouth is disturbed, displaced from one something, what we say pakshaghat, you know, that something disturbed by the nerves, पैरालिसिस, paralysis, Facial right? facial Right. palsy. फेशियल Yes, पैरालिसिस। facial paralysis, right. So it's also helpful in the paralysis of your mouth, basically facial. Okay, so air element is helpful. इसमें आप ये नहीं कह सकते कि तुरंत फायदा करेगा, but you have to do for long time, so it will help in the healing. Wait, is अपान वायु मुद्रा और इज इट वायु? No, sorry, vayu mudra, this one, वायु मुद्रा vayu mudra, फॉर फेशियल पैरालिसिस। yes. बट वायु अगर टू अवॉइड फेशियल पैरालिसिस से भी हो सकता है कि हो ही नहीं अगर करते रहे।
you can say like that, but पैरालिसिस के बहुत से और सिम्टम्स भी होते हैं, देयर इज डिफरेंट रीजंस। लेकिन जैसे यहाँ आपको हो गया है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, एयर एलिमेंट पे आपका स्पाइनल कॉर्ड भी जैसे टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो उसमें भी ये हेल्प करता है। पार्किंसंस प्रॉब्लम पता है आपको? पार्किंसंस प्रॉब्लम जो हमारी होती है, पार्किंसंस प्रॉब्लम में भी ये थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिलेगी यहाँ से, ठीक है। पार्किंसंस प्रॉब्लम में भी ये आपको हेल्प करता है। तो इतना आपका वायु एलिमेंट के तहत है। सो मेन पर्पस जो इसका वायु एलिमेंट का है आपका, वायु तत्व का, वो है कि वायु तत्व को बैलेंस करेंगे तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो धीरे धीरे आपकी ठीक हो जाएंगी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, थर्ड एलिमेंट है अग्नि, फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व। अग्नि तत्व के लिए हमने आपको बताया ये अंगूठा, फायर एलिमेंट अंगूठा है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं रूप, ठीक है। तो रूप इसमें आ जाएगा, और इसका जो चक्र होगा वो होगा मणिपुर चक्र, क्योंकि फायर एलिमेंट हमारा कहाँ पर है बॉडी में? नाभि, जिसको हम लोग कहते हैं डाइजेस्टिव फायर। तो डाइजेस्टिव फायर कहाँ पर है? डाइजेस्टिव फायर नाभि के पास है। तो नाभि का जो चक्र है जिसको हम लोग मणिपुर चक्र कहते हैं, तो मणिपुर चक्र आपका एक्टिवेट हो जाता है। अगर डिस्टर्ब है तो बैलेंस होगा, और डिप्लीशन ऑफ द एनर्जी है तो वो एनर्जी इंक्रीज करके उसको बैलेंस करता है। तो मणिपुर चक्र आपको ये यहाँ से मिलेगा। दूसरा ऑर्गन अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो लीवर, ये जो है आपका अंगूठा, ये लीवर और गाल ब्लैडर, लीवर एंड गाल ब्लैडर, इन दोनों को ये बैलेंस करता है फायर एलिमेंट। बाइल जूस कहाँ से बनता है? लीवर में। स्टोर कहाँ होता है? गाल ब्लैडर में। सो गाल ब्लैडर इज अ स्टोरेज ऑफ बाइल जूस। जनरेट कौन कर रहा है? लीवर कर रहा है। तो इसलिए फायर एलिमेंट कंट्रोल क्या क्या करेगा? आपके लीवर को, इफ यू हैव अ लीवर प्रॉब्लम, जैसे आजकल फैटी लीवर की प्रॉब्लम काफी चल रही है, ठीक है। तो फैटी लीवर है और गाल ब्लैडर में स्टोन आ जा रहा है, फॉर्मेशन ऑफ द स्टोन, या गाल ब्लैडर में सूजन आ जा रही है, स्वेलिंग आ रही है, तो गाल ब्लैडर की स्वेलिंग, ये सब भी जो प्रॉब्लम आ रही है इसका मतलब फायर एलिमेंट डिस्टर्ब है। इनडाइजेशन, हाइपरडाइजेशन, ठीक है, ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये भी फायर एलिमेंट की वजह से ही आ रही है। एंगर, गुस्सा बहुत आता है, टू मच, तो वो भी फायर एलिमेंट डिस्टर्ब कर रहा है आप, ठीक है। क्योंकि फायर का काम ही है एग्रेसिवनेस, हीट जनरेट करना, तो ये जहां भी होगा डिस्टर्ब होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। डाउन हो जाएगा तो आप बिल्कुल सुस्त पड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज, जितनी चीजें हैं आपकी, वो सब आपकी फायर एलिमेंट में आती है। आपकी एक्टिवनेस, आपके फेस का ग्लो, इट्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर फायर एलिमेंट, ठीक है। क्योंकि ये आपका रूप है, रेडियंट है, जो रेडियंट आपकी बॉडी की है वो ये गवर्न करता है फायर एलिमेंट, ठीक है। तो इसलिए फायर एलिमेंट के लिए आपके पास कौन सी मुद्रा है? अग्नि मुद्रा है। अग्नि मुद्रा, अग्नि मुद्रा कैसे करेंगे आप? अग्नि मुद्रा के लिए आपको जो है इस तरीके से आप कर सकते हैं। अंगूठा है आपका, रिंग फिंगर, ठीक है, ऐसे लगाइए। अनामिका, व्हाट वी से रिंग फिंगर, अनामिका उंगली को अंगूठे के नीचे लगाइए ऐसे। ये मैंने आपको बताया जो सेकंड नंबर आपका आता है, ये इस तरीके से, सॉरी, ये ऐसे लगाइए और प्रेस कर दीजिए, और तीनों उंगलियां आप सीधी करिए। ये कौन सी? अग्नि मुद्रा। अग्नि
मुद्रा है, इसी का रिप्रेजेंटेटिव हम इसको सूर्य मुद्रा के नाम से भी जानते हैं, सूर्य मुद्रा। ठीक है, अग्नि मुद्रा, सूर्य मुद्रा। थोड़ा सा दबा के रखिएगा हल्का सा। तो ये आपकी अग्नि मुद्रा आपके फायर एलिमेंट को कंट्रोल कर देगी, जैसे चिल्लाना, साउटिंग, या किसी को नेगेटिव वर्ड्स बोलना, नेगेटिव ऑल द टाइम नेगेटिव, तो उसमें भी। ठीक है, आपके बॉडी में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। ठीक है, अगर बॉडी में फैट बढ़ रहा है, बॉडी हैवी होती जा रही, तो फैट बर्न करने का काम भी अग्नि तत्व करता है। तो फायर एलिमेंट से आपका मोटापा भी कंट्रोल होगा। लेकिन मैं ये गारंटी नहीं ले सकता कि आप 1 महीने करेंगे केवल मुद्रा और आपका मोटापा कम हो जाए, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप लंबे समय तक या तो उसका अभ्यास करिए, और अभ्यास करेंगे तब वो धीरे धीरे फायर एलिमेंट, बेसिकली होता क्या है, फायर एलिमेंट आपकी डाइजेस्टिव फायर को कंट्रोल करता है। जब वो बैलेंस होगा तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगा। जब डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगा तो आपकी जो ईटिंग हैबिट बिगड़ गई है वो ठीक होगी, और वो ठीक होगी तो आपकी जो एक बिहेवियर में आ गई है चीजें, वो आपकी बदल जाएंगी। थोड़ा सा घूम के आए, फिर कुछ खा लिया, फिर कहीं कुछ अच्छा लगा, फिर कुछ खा लिया, फिर कहीं गए, टेस्ट की वजह से ओवर ईटिंग कर ली, तो इस तरीके की जो हैबिट्स हैं वो चेंज हो जाएंगी, और वो चेंज होगी तब आपका फैट धीरे धीरे रिड्यूस होगा। तो आपका जो मोटापा है, जिसको हम लोग कहते हैं हेल्दी, भारीपन हो गया, ये सब धीरे धीरे फैट लॉस के अंतर्गत आ जाएगा। और अग्नि तत्व का आप मुद्रा लगाइए, इसमें आपको रिलीफ मिलेगा। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ रहा है ब्लड में, तो कोलेस्ट्रॉल को भी ये कंट्रोल करता है। इट्स वेरी हेल्पफुल इन द कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम। तो इसमें बैड एंड गुड कोलेस्ट्रॉल 2 होते हैं, तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको धीरे धीरे ये बैलेंस करने लगता है। तो अग्नि तत्व जब हम लोग लगाते हैं तब। लीवर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, लीवर बेसिकली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी कंट्रोल करता है, तो वो इम्बैलेंस जैसे हुआ है तो आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसलिए आपका जब आप अग्नि तत्व की मुद्रा लगाते हैं तो आपके ये लीवर, आपका गॉल ब्लैडर, इसको भी ये बैलेंस करने की कोशिश करता है। टाइम लगेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो डायबिटीज रिकमेंड कर देते हैं, क्योंकि डायबिटिक जो प्रॉब्लम है वो आपके लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, खान पान चेंज होने की वजह से। आज सुबह 8 बजे खा लिया, कल 12 बजे खाया है, नेक्स्ट डे आप शाम को खा रहे हैं, चेंज हो रहा है साइकिल आपका। तो एक फिक्स टाइम नहीं है, तो ये आपके लीवर और गॉल ब्लैडर और आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। तो जब हम अग्नि मुद्रा लगाते हैं तो अग्नि मुद्रा लगाने से ये हमारी ये जो साइकिल है ये पहले बैलेंस होती है, एनर्जी मिलती है, तो ये सारे ऑर्गन्स प्रॉपर काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये डायबिटीज के लिए भी हेल्पफुल है, हम इस तरीके से इसको कह सकते हैं। अगले क्रम में हम लोग चलते हैं। चौथी मुद्रा हमारी जो होगी पंच तत्वों में, वो है जल तत्व। जल तत्व जिसको हम लोग कहते हैं वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट हमारा ये है लास्ट के स्मॉल फिंगर, जिसको हम लोग कहते हैं वाटर एलिमेंट, स्मॉल फिंगर्स। इसका जो संबंध है उसका संबंध हमारे टेस्ट से होता है, जीवा से, टेस्ट। ठीक है, और टेस्ट के साथ साथ जो चक्र है वो है स्वादिष्ठान चक्र। लोअर अगर हम लेवल पे जाते हैं तो नाभि से नीचे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसको ये कवर करता है। ठीक है, तो जो जल तत्व है, जल तत्व हमारा, आप देखिए ना, आकाश से हम धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं, अब हम धीरे धीरे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, लोअर डायरेक्शन में। तो स्वादिष्ठान चक्र, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उसी से रिलेटेड जो हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं वो भी हमारी इसी से कंट्रोल होती है। और देखा जाए तो आपका यूरिनरी सिस्टम इसी के अंतर्गत आ जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जो जल तत्व है या बॉडी में वाटर की जब कमी महसूस होती तो वो भी
जल तत्व से हम कंट्रोल करते हैं, वाटर एलिमेंट से। मुद्रा कैसे लगाएंगे? बहुत सिंपल है, ये देखिए, जल तत्व, ठीक है। अब देखिए, अब जल तत्व में अब हम यहाँ पर आ जाएंगे। फिजिकल सिम्टम अगर हम बात करें कि जल तत्व हमारा डिस्टर्ब है या नहीं, तो पेनफुल ऑफ द ज्वाइंट, ज्वाइंट में अगर आपके पेन हो रहा है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, सेक्सुअल प्रॉब्लम है, फ्रिक्वेंट आपको जमहाई आ रही है, याविंग सिस्टम अगर आपका है, किडनी में स्टोन है, ये सब अगर समस्याएं आ रही हैं, तो हम ये कहेंगे कि आपका वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है। नी प्रॉब्लम अगर आपको यहाँ पर आ रही है, घुटने में समस्या, तो हम ये कहेंगे कि आपके जल तत्व में प्रॉब्लम है, जो आपका वाटर एलिमेंट है वो डिस्टर्ब हो चुका है, ठीक है। लोअर बैक में अगर आपको समस्या आ रही है, लोअर बैक पेन, ये L1 to L5, पीछे की तरफ देखें, L1 to L5, तो हम ये कहेंगे कि जल तत्व की समस्या है, ठीक है। तो इतने सारे सिम्टम्स अगर आपके पास हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो वाटर एलिमेंट है वो डिस्टर्ब हो चुका है। इमोशंस में आप अगर ध्यान से देखें तो आपको बहुत डर लगता है, फियर, ये इमोशनल सिम्टम्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। गिल्ट की फीलिंग अगर आपके मन में है, तो आप ये कह सकते हैं कि आपको आपका वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब, ठीक है। नर्वसनेस अगर आपको फील हो रही है, फीलिंग नर्वस ऑल द टाइम, तो वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर जल मुद्रा को हम लोग वरुण मुद्रा के नाम से जानते हैं, वरुण मुद्रा, वरुण इन संस्कृत एक्चुअली। तो ये क्या है? वरुण मुद्रा है। आप लगा के बैठिए, 45 मिनट तक हमने बताया आपको। जब आप ये लगाते रहेंगे तो आपको ये जितनी भी चीजें हैं जो अभी सिम्टम दे रही हैं, ये सिम्टम धीरे धीरे जाने लगेंगे, ठीक है। इसलिए बच्चों को भी आप इस तरह, ज्ञान मुद्रा तो ठीक है, लेकिन जैसे ही एज बढ़ने लगती है, आफ्टर 14 ईयर्स 15 ईयर्स, आप उनके वरुण मुद्रा को लगवाइए। तो ये जो कई बार हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो प्रॉब्लम आती है वो भी बैलेंस हो जाएगी। वाटर की कमी की वजह से जो प्रॉब्लम आती है, ड्राई स्किन हो जाती है, ठीक है, स्किन डिसीज हो रही है, वो सब भी आपका वरुण मुद्रा से या जल मुद्रा से कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। एक लास्ट एलिमेंट की तरफ हम लोग और आगे बढ़ते हैं, और जिसका नाम है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व के लिए आपको क्या करना है? पृथ्वी तत्व आपका कौन, अब एक फिंगर ही बची हुई है, कौन सी होगी? रिंग फिंगर, राइट, गुड। सो रिंग फिंगर जो हमारी ये वाली है, ये हमारी पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट है। तो जो अर्थ एलिमेंट है, अब अर्थ एलिमेंट आप समझ जाइए डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो पूरे बॉडी जो हमारा बना हुआ है अर्थ एलिमेंट से बना हुआ है, और इसकी जो ऑर्गन है वो है नोज, स्मेल। पृथ्वी से एक सुगंध आती है, ठीक है, वो हम लोग नोज से लेते हैं, तो स्मेल, तो नोज इसका एक ऑर्गन होता है। चक्र की बात करेंगे तो लोअर लेवल पे क्या है? मूलाधार चक्र, वेरी गुड, वेरी गुड। सो मूलाधार चक्र कनेक्टेड होगा, और इसका जो ऑर्गन होगा वो स्प्लीन है। स्प्लीन हम लोग इग्नोर करते हैं, जबकि इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा स्प्लीन। और स्टोमक, जो भोजन को हम लोग जब इनटेक करते हैं तो वो इसोफेगस से जाता है कहाँ पर? स्टोमक में। तो हमारा स्टोमक और स्प्लीन ये अर्थ एलिमेंट से कनेक्टेड होते हैं। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आई, ठीक है, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है आप समझ लीजिए। इसमें अगर आप स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है, ठीक है, आप एडिक्टेड हो गए, हैवीनेस है ना, ग्रेविटी है, खींच के रखेगी। कोई भी एडिक्शन हुआ तो आप एडिक्टेड रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ नहीं सकते। अटैचमेंट, ग्रेविटी की वजह से अटैचमेंट्स, किसी चीज से अटैच हो गए, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, तो आपके अंदर अटैचमेंट आ जाएगा। ये ऑब्सेशन जिसको हम लोग कहते हैं, किसी चीज को करने के लिए जो जुनून होता है,
वो भी एक इसी अर्थ एलिमेंट का है। ईगो, ठीक है, अहम भाव, ये भी आपको अर्थ एलिमेंट को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, रिजिडिटी आप कह लीजिए कि आप बहुत ज्यादा हठ पूर्वक, तो ये भी अर्थ एलिमेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सब चीजें अगर आपके पास हैं तो आप ये कह सकते हैं बहुत ज्यादा है तो आपका अर्थ एलिमेंट बैलेंस नहीं है। मोटापा, ओबेसिटी, ये भी अर्थ एलिमेंट को ही रिप्रेजेंट करता है। लैक ऑफ एनर्जी, क्योंकि अर्थ एलिमेंट हैवी होता है, मूवमेंट बहुत ही स्लो होता है, तो आप समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं करना चाहते हैं, एक जगह रहना चाहते हैं, एक जगह ही सब कुछ उनको मिल जाए। और ऐसे लोगों के अगर अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब होता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, अल्सर, अल्सर की प्रॉब्लम आएगी अगर ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब है। और कई बार ब्लेंचिंग की प्रॉब्लम आती है, बार बार डकार आना, ये भी अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हम बाहर एक्सप्रेस नहीं कर पाते कई बार, तो हम लोग बाथरूम में गाना गाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक्सप्रेशन की फीलिंग नहीं, तो वो भी अर्थ एलिमेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से इसको हम लोग पृथ्वी मुद्रा के नाम से जानते हैं। इसकी जो मुद्रा है आप सिंपली लगा लीजिए इस तरीके से, ऐसे। तो जब हम इस तरीके से मुद्रा को लगाते हैं पृथ्वी मुद्रा को, तो जो पृथ्वी मुद्रा से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो बैलेंस होने लगती है। चक्र है, मूलाधार चक्र भी आपका बैलेंस होता है। तो इन टोटल अगर हम लोग कहें तो पृथ्वी तत्व जो है, या आप अर्थ एलिमेंट कहें, या आप कह लीजिए कि पृथ्वी मुद्रा, तो पृथ्वी मुद्रा लगाने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होगा। ठीक है, आपका, मैंने आपको बताया कि स्प्लीन इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इम्यून सिस्टम, तो आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होगी। ठीक है, पॉजिटिविटी आपके अंदर बढ़ेगी, सात्विक जिसको हम लोग कहते हैं, सात्विक थिंकिंग कह लीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग कह लीजिए। ठीक है, और इम्यूनिटी सिस्टम आपकी जब बढ़ेगी तो आपके अंदर एक जो ओजस जिसको हम लोग कहते हैं, ओजस, ओजस का मतलब होता है फिजिकल बॉडी के अंदर जो एक एनर्जी होती है, ओज, तेज जिसको हम लोग कहते हैं आपके, तो ओज और तेज का विकास होता है आपके पृथ्वी मुद्रा से। कोई बहुत सूखा व्यक्ति है, दुबला पतला है, बिल्कुल, और हम लोग उसको कहते हैं, वेरी गुड। तो बहुत सूखा व्यक्ति, मान लीजिए आप कह लीजिए कुछ भी खा रहा है तो उसमें फैट नहीं बढ़ रहा है, तो पृथ्वी मुद्रा लगवाइए आप उसको। ठीक है, तो धीरे धीरे उसका वेट गेन होगा। वेट गेन करना है तो उसमें भी पृथ्वी मुद्रा बहुत ही हेल्पफुल है। वेट लॉस करना है तो अग्नि मुद्रा लगा लीजिएगा। ठीक है, फिजिकल एंड मेंटल स्टेबिलिटी अगर आपको लानी है तो पृथ्वी मुद्रा लगाइए। जैसे किसी का वायु तत्व बहुत बढ़ा हुआ है, बहुत चंचल मन हो गया है उसका, ठीक है, तो वायु तत्व से बैलेंस होगा और उसको उसमें लेकर आना है गंभीरता में, तो आप पृथ्वी मुद्रा भी उसको लगवाइए। ठीक है, और नोजल, चूंकि हमने बताया आपका पृथ्वी तत्व नोज से संबंधित है, तो यहाँ से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है, कई बार इन्फेक्शन हो जाना, या कई बार जुखाम की समस्या हो जाना, या कुछ अलग अलग तरीके की, या स्मेल ना आना, उन सब में पृथ्वी मुद्रा आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने केवल 5 तत्व जो है, और पांचों तत्वों से संबंधित जो ऑर्गन्स होते हैं, उससे संबंधित जो चक्र होते हैं, वो हम लोगों ने देखे हैं, और उसी से रिलेटेड हमने ये देखा है कि इसको करने से क्या फायदे होते हैं। ऐसी और भी बहुत सी मुद्राएं हैं, योग में और भी बहुत सी मुद्राएं हैं जिसको हम लोग करके आगे अपने, चाहे सिक्स सेंस को डेवलप करना हुआ, या आप कह लीजिए कुंडलिनी अवेकनिंग की बात करें, या जीवन चक्र को चेंज करने की बात करें, ऐसी बहुत सी मुद्राएं हैं। कम्युनिकेशन की बात करें तो ये भी बहुत बड़ा विज्ञान है। इसमें से मैंने केवल एक सेक्शन उठाया है, उसमें भी टाइम ज्यादा लगा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सर L4 L5 में अगर
न ये साइटिका नर्व पिंच हो रही है, तो क्या मुद्रा लगा सकते? देखिए साइटिका नर्व्स के लिए और भी मुद्राएं हैं, वो मैं आपको भेज दूंगा जो है। वैसे तो अभी हमने आपको एक मुद्रा बताई थी जो L1 to L5 की कंट्रोल करने के लिए, कोई किसी को याद है? जल में आपने जॉइंट्स, जॉइंट्स के लिए जॉइंट आकाश नहीं। आकाश मुद्रा, हाँ। नहीं ज्वाइंट आकाश तो अलग सेंस में है। आप अच्छा। कोई कोई मुझे वायु, बताइए। वायु का आप वायु। बता दें। वायु जो जो स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है, ठीक है। और देखिए एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, अपान वायु मुद्रा देखिए जैसे L4 L5 उन्होंने बताया है, थोड़ा और स्पेसिफिक हम लोग जा सकते हैं। और स्पेसिफिक में जाकर हम ये कह सकते हैं कि देखिए L1 to L5 का जो एरिया होता है बेसिकली वो जब कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होता है तो उसमें उसकी वजह से या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से वहां पर पेन होता है। देखिए फिजिकल इंजरी की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, अगर हाँ। कोई इंजरी हुई है तब तो मुद्राएं काम नहीं करेंगी, लेकिन अगर कुछ इस तरीके की समस्याएं हैं उसको ठीक करने के लिए अपान वायु मुद्रा लगवाइए। हाँ। ठीक है, तो अपान वायु मुद्रा जो होगी वो उसमें आपको हेल्प करेगी बहुत अच्छे तरीके से, ठीक। उसके रूट कॉज को हटाएगी और वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सर ओरल लाइकेन प्लानस के लिए कुछ हाँ। बता सकते हैं मुद्रा? जो मुंह में छाले, ऑटो इम्यून डिजीज है, 4 साल से मुंह में छाले, ओरल लाइकेन प्लानस। हाँ तो ये देखिए ये स्प्लीन की प्रॉब्लम है और दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है बेसिकली। तो इसके लिए आप एक तो स्प्लीन के लिए मैंने अभी आपको बताया था अर्थ पृथ्वी मुद्रा, और पृथ्वी मुद्रा के साथ आप अपान वायु मुद्रा लगाइए। सर इन सब के लॉजिक को समझने के लिए अब जैसे यिन यांग और ये कोई आर्टिकल्स हैं या कोई ऑथर्स हैं, उनके बुक्स हैं जिनको पढ़ सकते हैं कुछ क्योंकि बेसिक नॉलेज तो है, पर उसके आगे फिर अगर बढ़ना हो तो क्या चीज, क्या कहा जा सकता? हाँ इसके लिए देखिए मुद्राओं पे ना बुक्स तो आपको कम ही मिलेंगी, हाँ एग्जैक्टली। क्योंकि मैंने आपको पहले ही इसीलिए बताया क्योंकि मुद्रा तंत्र का विषय है और तंत्र की चीजें बहुत ही सीक्रेट रखी गई है, और उसके पीछे कारण यही है कि उसका मिसयूज ना हो और उसका निगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर भी ना आए। जैसे आप बच्चे को कभी आग जलाने के लिए नहीं देते हैं, बच्चे को कभी आप चाकू नहीं देते हैं, ठीक है, बच्चे को आप कभी ये नहीं कहते कि जाके गैस की नॉब ऑन कर दो, तो हाँ, पर टाइम आने पर ही उसके फायदे भी फिर नहीं हम इस्तेमाल कर सकते क्योंकि हमको उसके नहीं, बारे में उतनी नॉलेज पात्रता, इट्स अ मैटर ऑफ आपकी वो पात्रता कितनी है क्योंकि हमारे यहाँ पे, आपके। मैं पूना में रहती हूँ, यहाँ पे एक मुद्रा का ग्रुप है विच आई बीन एसोसिएटेड विद देम फॉर नाउ 3 years। तो जी हम लोग इससे काफी हीलिंग की कोशिश करते हैं कि लोगों को हेल्प कर सकें, परंतु उसमें भी पर मुझे काफी क्वेश्चंस हैं जो कि मेरे को उनके आंसर्स नहीं पता कि पीछे का हाथ कैसे इस्तेमाल होता है या उसका क्या लॉजिक है। ये जैसे मैंने आपसे पूछा कि इसमें सूर्य तत्व बढ़ रहा है या वायु तत्व बढ़ रहा है, वो क्या उसके लॉजिक से, वो देखिए अभी बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। बिल्कुल मैं मैं समझ रहा हूँ आपकी चीजें, मैं समझ और सकता हूँ कि नवीन जी का जो ज्ञान है बहुत ही प्रोफाउंड है, और जिस तरह से लोगों की क्यूरियोसिटी है, हम प्लान करेंगे कि वापस नवीन जी को इनवाइट करें उनका टाइम Yes, लेके, yes, एंड yes, वो sir. यही नॉलेज को आगे एक्सटेंड करें। Thank विल you, विल thank ट्राई। you, sir. You explained it धन्यवाद। very देखिए well. इसमें इसी चीज के लिए एक्चुअली हम एक अभी हम डेवलप कर रहे हैं एक छोटा सा आश्रम मेहुल जी, मैंने आपसे डिस्कस किया था नीलकंठ के ऊपर। बेसिकली हमारा पर्पज ही यही है, बहुत ही वो मतलब थोड़ा सा सिटी से अलग हटके है Wow. और गांव के बीच में है ऑन द माउंटेन, तो वो अभी अंडर डेवलपमेंट है, और उसका पर्पज ये है कि आप वहां पर आए, वहां पर रहें 4-5 दिन जो भी है, और ये जो मुद्राओं का ज्ञान है वो और डिटेल में मेडिटेशन के साथ में जब आप Wow. सीखेंगे तो और बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। Thank you, ये thank वो अभी एग्जैक्टली कहाँ है डेवलपमेंट गुरुजी? जी। Where is it, sir? ये ऋषिकेश, आश्रम आप कहाँ बना रहे हैं? ऋषिकेश से ऊपर नीलकंठ, Wow. जस्ट 15 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द ऋषिकेश। Ah.
Yes. My daughter has been there. Now it's a dream that she's taking me there. Rishikesh. She's saying Okay. that is the best You're place. most welcome. You're most नवीन जी का ऑलरेडी I- नवीन जी का ऑलरेडी है आश्रम, वहाँ पे बना नहीं रहे, ऑलरेडी है। तो वहाँ पे हम Okay, सबको okay. वो इनवाइट कर रहे हैं, पूरी कम्युनिटी को इनवाइट कर रहे हैं। आप आइए, आपके लिए हम ये व्यवस्था सब रखेंगे, तो हम इनवाइट कर रहे हैं। और जो बहुत ही सही उन्होंने बताया कि मेडिटेशन के साथ मुद्रा जब करेंगे तो उसका कुछ इम्पेक्ट हुआ ही होगा। पर नवीन जी, मेहुल जी आश्रम का सबके नाम लिए क्या है? आना तो मुश्किल होता है, तो क्योंकि हम जूम कुछ की करेंगे। फैसिलिटी है, इसलिए लेट्स मेक यूज ऑफ द जूम एंड लेट्स टेक मोर नॉलेज फ्रॉम नवीन जी हम उसको about बैलेंस mudra. करेंगे, What is the उसको name of बैलेंस the करेंगे। ashram? Sometimes Namrata ji, just I would like to say you, sometimes हम लोग क्या होता है कि कोई चीज हमें एक्सपीरियंस, तो आपको उसी जगह पे आना पड़ेगा। Yeah, correct. क्योंकि होता क्या है कि हम जिस इन्वायरमेंट में हैं, जब तक उस इन्वायरमेंट से अलग हटेंगे नहीं, तब तक कई सारी चीजों की नॉलेज नहीं हो पाती। नहीं, वो आप ठीक वो कह रहे हैं कि वो भी प्लान बिल्कुल। करेंगे, पर जब तक जूम की फैसिलिटी है Namrata ma'am, एक बेस कर सकते हैं। I'll answer कहाँ the है question. ये? Namrata, I'll Where is answer the this question. ashram, sir? Where is the ashram? नीलकंठ। What is the name of the ashram? Name of the ashram? श्री राम योगा सोसाइटी। Namrata ma'am, to answer your हाँ, question, yes, हाँ we जी। are planning. Yes, we are planning an online course, and it is under development. And you will receive an update regarding that over the next few days. So अच्छा। an online program is in progress, and that will be shared in over the next few weeks. Now, because we are in the Diwali week, that's why we हाँ, have not shared the program, because everybody is busy with Diwali celebrations. We'll wait for this to complete, and after that we will share the program, which will help everyone, right? And for people who want to take benefit, right, जिन लोगों को अच्छे से पूरा benefit लेना है, अच्छे से पूरा उसमें खो जाना है अपने healing में, and along with meditation and along with yoga mudras and yoga asanas, they are welcome to visit Dr. Naveen Pandey at his ashram, which is in Neelkant. Neelkant is 15 kilometers away from Rishikesh, and and the name of the ashram is Sri Ram Yoga Center. Is that correct? Yes, Yeah. yes, Rajesh. So we have two options. We have an online option and we have an offline in-person option also. And we will also be sharing Dr. Naveen's contact details, okay, in the group. And so anybody who wants to visit this particular ashram, they can call, talk to Dr. Naveen and line up and then plan and then schedule it. So that space is also made available for the people at the ashram. Okay, so we'll be doing a sequential and a systematic approach to all of it. And the communication will happen over the next few days in the wellness community group. Okay, so request all of you to join there. And on behalf of the wellness leaders community, so we are extremely thankful to you, Dr. Naveen, for the guidance that you've given. And we are extremely thankful to all the participants who have come today and who have asked questions. And it's a sincere effort from our side to heal people's lives. Okay. And we want to heal people's lives using simple, traditional Indian and other healing modalities. Okay. तो हमारे वेदास में और हमारे पुराने जमाने में जितने healing sciences थे जो कहाँ ना कहाँ खोए जा रहे हैं, which are going missing. Okay, we're trying to keep all those healing sciences alive, and we want to share all this wisdom and knowledge with all of you so that you can benefit and your lives can improve. Okay, so we thank you for the support that you've extended, and please stay connected, and we'll share the updates in the group. And all of you are amazing, and stay awesome, and good luck in your healing and wellness journey. Thank you. Thank you, sir. It was a wonderful session. We are blessed to be a part of your wonderful group. We are really grateful. Thank you so much. Very beneficial. Thanks everyone. It was a wonderful session, sir. Thank you very much. you, Naveen sir, There are lots more wonderful Rajesh sessions. sir, and Mahal Thakur sir. Thank you. Thank you so much. वो ये भूल गए हैं तो उनसे क्या बताए हैं, क्योंकि या तो सुन सकते हैं Recordings या note share कर- होगी, recordings हम लोग भेजेंगे. हाँ Recordings Thank you. will be Please shared भेजिएगा. with everyone. वो भेजिएगा। Thank you. जरूर। Thank you. Thank you. Thank you so Thank you. much. And let's work See you on next together to Sunday. heal the planet.
Let's you. all work Namaste. together to Thank heal you. the Thank entire you, Mehul planet. ji, Rajesh ji. Yes, Thank yes. you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so Thank much. you all. Thank you. Om Thank you. Shanti. Om Shanti. Shanti. Om Shanti. Thank you, Thank sir. you. Thank you.